Attention. Now, what are the theories of attention? See, the process of making the theories is a very slow process. The first of all, people try to understand. So, the theories which are initial theories are very basic theories. That is why there is a succession of theories which try to explain the concepts in a better manner. So, first theory was filter theory, which was given by Brodmann. Okay. Now, what is filter theory? Filter theory says that it is a kind of a funnel. हमारा जो attention process है, right? The stimuli enters the receptor cells. ये हमारा receptors है, okay? तो ये जो हमारा receptor cells है, तो वो ये बोलता है कि हमारी एक bottleneck situation. This is a bottleneck situation, where one of the stimuli will enter and will be in our consciousness. ठीक है, सिर्फ एक. और बाकी सब के अंदर क्या होगा? It will move back. It will touch here. It will move back. Okay, so according to them, the STM, short-term memory, will select only one stimuli, and we will take care of that stimuli only. We will attend to that stimuli only, and all the others will not be taken care of. Right? वो हमें पता ही नहीं चलेगी. Now see, this is the whole point. The others will be screened out. But don't you think that if somebody is taking your name outside, like Dweep or Shaila or something, then won't our attention move out? If there is a noise in this class, won't you listen from where it is coming? That means if we are attending this class also, our attention will waver if an external stimuli will come. Yes or no? It shows that it will waver. So the second filter attenuation theory was given by Brodmann plus Pressman. Okay, the modification was done by Pressman, but it was already given by Brodmann. So it is known as Brodmann and Pressman theory. Okay, but the pioneer was Pressman. Now what did he say? He says that the stimulus are not completely blocked. That means the situation where I am saying that it will go out. It will not happen like this. See, what he says is, there will be a bottleneck situation. We will be attending to one stimuli at a time. Okay? But bits and pieces of the other stimuli, stimuli 1, stimuli 0 जो हमारा focus है, stimuli 2, stimuli 3, ये भी हमारे conscious में जा रहे हैं. Tits and bits. हमें दिख रहा है कि बाहर बच्चे खेल रहे हैं. हमें सुनाई दे रहा है कि डोर के बाहर कोई है. हमें पता है कि कोई हमारे साथ बैठ के बातें कर रहा है. कोई हमें पता है कि वो चीटिंग कर रहा है. हमें सब कुछ पता हो रहा होता है, थोड़ा थोड़ा, बहुत सारा कुछ नहीं, पूरी डिटेल में नहीं पता होता, लेकिन बिट्स एंड पीसेस पता होते हैं. ठीक है, आर नॉट कम्प्लीटली ब्लॉक. कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं है तो निकल के छोटी छोटी पीसेस आ रहे हैं. उसके बाद है स्टिमुलाई रीच हायर लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग. सारे स्टिमुलाई हायर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में जाते हैं और हम सिलेक्ट करते हैं कि मुझे कॉन्सेंट्रेट तो इसके ऊपर करना है. ये चलता रहेगा. ठीक है, अब गाड़ी चला रहे हैं, मुझे म्यूजिक चेंज करना है और मेरी रास्ता खाली है, तो मैं म्यूजिक भी चेंज कर लूंगी, टेलीफोन पे भी बात कर लूंगी. अगर रास्ता भरा भी हुआ है तो मैं ध्यान से धीरे स्पीड करके वो भी चलाती रहूंगी और बात भी करती रहूंगी और अड़ोसी पड़ोसियों से भी बात कर लूंगी. तो मेरा ध्यान तो सब चीजों में जा रहा है ना, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन जा रहा है. राइट? Now, multi-mode theory was given by Johnston and Hales, and what they said that this attention is a very flexible system. It is not कि हम सिर्फ एक के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो कार के साथ हो रहा है. हम चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे ध्यान दे सकते हैं, right? But how do we select what to attend? ये बड़ा क्वेश्चन है ना कि आप अटेंड कर रहे हो तो किसके ऊपर अटेंड करें? तो सारे स्टिमुलाई आ रहे हैं, मैं उसको प्रायोरिटी वाइज कैसे करूंगी? सबसे पहले मैं सेंसरी रिप्रेजेंटेशन देखूंगी. जिस चीज के लिए मेरे सेंसरी ऑर्गन्स बिल्कुल एक्टिवेट हो रहे हैं, वो मुझे जल्दी मिल रहा है, अच्छी तरीके से मिल रहा है, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगी. किताब रख के मैं बोल देती हूँ कि हाँ रीडिंग कर लो, ये तुम्हारा लेक्चर हो गया. क्या ध्यान जाएगा? नहीं. बोर्ड पे लिख रही हूँ, 2 कलर यूज कर रही हूँ, ध्यान जाएगा, है ना? और 3-4 कलर से मैं कुछ और बना देती हूँ, ध्यान जाएगा? Because my sensory representations are there. I am giving you auditory signal, I am giving you colorful sensory experience, I am giving you a written experience also. तो आपके बहुत सारे experiences बीच में चल रहे हैं. तो ये क्या हो रहा है? एक फील्ड अंडरस्टैंडिंग. आपको वो चीजें समझ में आ रही हैं, तो
आपका ध्यान जाएगा। अब क्या है प्रोसेसिंग, ये मेंटल एफर्ट है, जो भी मेरा सेंसरी सिग्नल आया। दूसरी की चीज क्या है मेरी, सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग। मैंने उन दोनों को कोऑर्डिनेट किया। मैंने यहाँ पे पेड़ पौधे हरे भरे नीले बहुत सुंदर सुंदर सजा दिए, सेंसरी एक्सपीरियंस तुम्हें मिल गया। लेकिन तुमने समझा नहीं मैडम ने क्यों किया है, मेरे टॉपिक से तो कोई रिलेटेड नहीं है। तुम्हें वो मजा आएगा, उसमें ध्यान जाएगा, दूसरी बार आप ध्यान नहीं दोगे। लेकिन अगर तुम्हें डाइजेशन सिस्टम सिखाया जा रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया जा रहा है तो ज्यादा ध्यान जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। प्रोसेसिंग मेरे लिए ये कितना जरूरी है, क्या ये उसके लायक है, मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर वो रेलेवेंट है वो सेंसरी एक्सपीरियंस, तो वो आपके लिए आपका अटेंशन लेगा, अदरवाइज वो चीज आपकी अटेंशन नहीं लेगी। आपने प्रोसेसेस, वी हैव डन अटेंशन, now we are in the perception. What is perception? Perception is what we see and what we analyze. हमने कुछ देखा, लेकिन हर एक बंदे का अलग अलग परसेप्शन रहेगा, अलग अलग सोच रहेगी। ठीक है, उसको वो किस तरीके से एनालाइज करता है, उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है, that is perception. The process by which we recognize, interpret and give meaning to sensations provided by the sense organs is known as perception, right? What in summing up we say what, how we see it and how we interpret it. आपने किस चीज को क्या देखा, आपने इसको पेन देखा और इसको इंटरप्रेट मार्कर की तरह किया, या इसको इंटरप्रेट पेंसिल की तरह किया, इसको इंटरप्रेट एक स्टिक की तरह किया। आपने क्या देखा और उसको किस तरीके से परसीव किया, उसको इंटरप्रेट कैसे किया, दैट इज परसेप्शन। हर एक का अलग अलग होता है। कोई सुनता है कुछ तो बोलता है ये वाली बच्चे की रोने की आवाज है, दूसरा बोलेगा चुप, मतलब वो म्याऊ म्याऊ कर रही है कैट, तो ये परसेप्शन है। किसी घर में बच्चा होगा तो वो पहले सोचेगा कि बच्चे की रोने की आवाज है, राइट। लेकिन किसी के घर के अंदर बच्चा नहीं होगा तो वो बच्चे की रोने की आवाज तो नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि कोई जानवर का बच्चा रो रहा है, राइट। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ परसेप्चुअल अप्रोचेस, हम किस तरीके से चीजों को परसीव करते हैं। ठीक है, आप गाड़ी को एज अ होल करते हो, राइट, लेकिन गाड़ी को समझने के लिए छोटे बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर एक स्टीयरिंग व्हील होता है, इसके अंदर 4 पहिए होते हैं एंड ऑल दैट। हम समझाते हैं और उसको एक पूरी फिगर के अंदर समझा देते हैं कि हाँ ये किसी भी शेप में हो, लेकिन उसको उसके अंदर ये सब चीजें होती हैं। तो ये बॉटम अप अप्रोच है व्हेन वी आर टेलिंग अबाउट द पार्ट्स एंड वी टेल दैट द होल थिंग विच एवर शेप इट इज, वो पीछे से बाहर निकली हुई हो, पीछे ऊपर से गोल हो, ऊपर से रेक्टेंगल शेप में हो, चाहे कोई भी शेप में हो, रोम्बस बनी हुई हो, लेकिन दैट इज अ कार बिकॉज इट हैज अ स्टीयरिंग व्हील, इट हैज अ गियर, इट हैज 4 व्हील्स, राइट। दिस इज अ बॉटम अप अप्रोच। आप बिल्कुल बीच में बेसिक पे जाके आप होल को समझ रहे हो। रिकॉग्निशन प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम द पार्ट्स which forms the basis for the recognition of the whole. आप पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करके एज अ होल उसके ऊपर जा रहे हो। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग? टॉप डाउन प्रोसेसिंग इज व्हेन यू सी द थिंग्स इन अ होल एंड देन यू गेट टू द बॉटम। ओके, आप पूरा परसीव देखते हो। आप एक ड्रम को देख रहे हो, आप देख रहे हो इतना बड़ा ड्रम है, पहले आप बोलोगे ड्रम है, ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे अच्छा टैप भी लगा हुआ है, शायद वाटर टैंक होगा, अच्छा ये है तो ये होगा। मतलब पहले आप पिक्चर बना रहे हो पूरा एज अ होल से। प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम द होल विच फॉर्म्स द बेसिस फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ इट्स पार्ट्स। पहले बड़े को देखकर उसको परसीव कर लोगे, फिर उसके पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू करोगे, राइट। नाउ द परसीवर। परसीवर जो होता है वो इफेक्ट होता है बहुत सारी चीजों से। पहला है मोटिवेशन। द नीड एंड डिजायर्स इन्फ्लुएंसेस हिज परसेप्शन, राइट। मुझे भूख लग रही है, मैंने एक फोटो देखी जिसके अंदर बड़ा एब्स्ट्रैक्ट फोटो है, तो मैं उसमें क्या ढूंढूंगी, मैं उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ढूंढूंगी, पिज्जा ढूंढूंगी, मैं बर्गर ढूंढूंगी उस एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर में, क्योंकि मुझे भूख लगी है, मेरी नीड है, मेरी डिजायर है। ठीक है, जो हमारी वो होती है मॉडर्न आर्ट होती है, उसमें हर जना अलग अलग कुछ देखता है, राइट। वो उसका परसेप्शन कैसे चल रहा होता है, उसकी नीड, उसकी डिजायर्स के, उसकी सोच के हिसाब से। तो ये हमारे मोटिवेटर्स का काम करते हैं। जिस चीज की हमें जरूरत होती है हम उस चीजों को परसीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हमें हथौड़ी चाहिए और हथौड़ी नहीं मिल रही तो हम हर ऑब्जेक्ट में एक वो हथौड़ी ढूंढ रहे होते हैं कि क्या वो हथौड़ी का काम कर सकता है। ठीक है, तो उस मोमेंट के अंदर
That is our motivation. Now perceptual set. These are the expectation about what we might perceive. हमारा एक perceptual set बन जाता है. एक बच्चा किसी के हाथ में हम पेंसिल देखेंगे, कोई वो रिबन भी लग गया हो या फेदर लगा हो, तो हम उसको यही परसीव करेंगे ना, इसके हाथ में पेंसिल होगी, क्योंकि हमें पता है कि बच्चा पेंसिल से काम करता है, तो उसके हाथ में जो भी है लिख रहा है वो तो पेंसिल ही होगी. ओके, वी विल परसीव इट बिकॉज इट इज अवर परसेप्चुअल सेट. हमारी सोच इस तरीके की बन गई है. नेक्स्ट इज कॉग्निटिव स्टाइल. दिस इज फील्ड इंडिपेंडेंट एंड फील्ड डिपेंडेंट. क्या होता है फील्ड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? कई बार हम एज अ होल देखते हैं और उसको उसका छोटा सा पार्ट देखते हैं. कई बार सिर्फ हम उस चीज को देख रहे हैं और पूरे बैकग्राउंड को हम नल एंड वॉइड कर लेते हैं. ठीक है, तो उसके अंदर हमारा ये कॉग्निटिव स्टाइल्स है, हमारी सोच. हम एज अ होल चीज को देखेंगे या एज अ सिर्फ छोटा सा पार्ट. नेक्स्ट इज कल्चरल बैकग्राउंड. नाउ मेरा जो परसेप्शन होगा दैट डिपेंड्स ऑन माय कल्चरल फैक्टर्स. मेरे जो घर के, जो मेरे सोशल बैकग्राउंड, मेरा कल्चरल बैकग्राउंड है, वो चीजों को देखने के लिए अलग कर देगा. Like I always tell you that in Rajasthan there are Rudalis. Okay, do you know who are Rudalis? Rudalis are the ladies who are called to cry. कोई भी इवेंट ऑफ डेथ है, इवेंट ऑफ सॉरो है, द लेडीज आर नॉट अलाउड टू क्राई. ठीक है, तो परसेप्चुअल सेट क्या है? रुदालियाँ रो रही हैं तो क्या है, कुछ बुरा हुआ है इस घर में. ठीक है, मेरे कल्चर से आया है ये, मैं उस कल्चर को जानती हूँ. आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो मेरे को ये पता है कि ऐसा होता है. तो उसमें एक और चीज पता चल गई दैट वी आर नॉट अलाउड टू क्राई. तो मेल्स आर नॉट अलाउड टू क्राई. लड़कियां रोनी है तो वो ऐसे हल्का हल्का रो सकती है, दे कांट फूट के नहीं रो सकती है. ओके, तो मतलब वो जो चीजें हैं ये हमारे कल्चर से है, ये हमारे परसेप्शन है. ठीक है, ये हमारा करते हैं. बंद कर